Hello students, welcome back to English Literature Classes BA Part 2. Today our topic is the title of the novel, its significance in the return of the native. Okay, critically evaluate the title of the novel, The Return of the Native. The novel is set on Egdon Heath, a fictional Warren Moor in Wessex in southwestern England. The native of the title is Clym Yeobright, who has returned to the area to become a schoolmaster after a successful but, in his opinion, shallow career as a jeweler in Paris. ये जो शीर्षक है एक अच्छा शीर्षक है, उपयुक्त और महत्वपूर्ण भी है। जिस तरह हम कह सकते हैं साइन बोर्ड एक दुकान की सामग्री को इंगित करता है, उसी तरह एक अच्छे शीर्षक को पदार्थ को भी इंगित करना चाहिए। ओके, क्लाइम येओब्राइट का जन्म और पालन पोषण एग्डन हीथ पर हुआ था। वह इसके मूल निवासी हैं और वे हीथ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसके प्रभावों के माध्यम से और उसके माध्यम से ही वो व्याप्त हैं। वह पहाड़ियों को अनुकूल और मैत्रीपूर्ण मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हैं वो उस एटमॉस्फेयर से। ओके, और इसकी आत्मा और उसके खून में भी है। इसकी जो आत्मा है वो उसके खून में है। उसके खेलने की चीज़ें क्या हैं? एग्डन की वनस्पति और वहाँ का वातावरण। ये सब क्लाइम येओब्राइट को बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, इस नॉवेल का जो आधार है, विषय जो है वो क्लाइम येओब्राइट की वापसी के दुखद परिणामों की कहानी है, जो कि एग्डन हीथ के मूल निवासी हैं। A good title must be appropriate and significant, just as signboard indicates the contents of a shop. A good title should indicate the substance or the basic theme of a novel is the story of the tragic consequences of the return of the Clym Yeobright, who is native of एग्डन हीथ। ओके, ये जो एक अच्छा शीर्षक है उपयुक्त और महत्वपूर्ण भी होना चाहिए। जिस तरह एक साइन बोर्ड एक दुकान की सामग्री को इंगित करता है, उसी तरह एक अच्छे शीर्षक को पदार्थ को इंगित करना चाहिए। या एक नॉवेल का आधार विषय जो है वो क्लाइम येओब्राइट की वापसी के दुखद परिणामों की कहानी है, जो कि एग्डन हीथ के मूल निवासी हैं। Clym Yeobright was born and bred up on Egdon Heath. He is its native. He loves the heath and is permitted through with its influences. He finds the hills congenial and friendly, and its very spirit is in his blood. His playthings have been the flora and fauna of Egdon, and he is familiar with the face to ancient heath as one is with the face of a close relative. He is the son of एग्डन। वो एग्डन के सन भी हैं, मतलब पुत्र भी हैं वो उनके। एंड एग्डन इज इन हिज ब्लड एंड ही कैन नॉट रिमेन हैप्पी अवे फ्रॉम इट।
ओके। ये जो क्लाइम ईओब्राइट का जन्म वो पालन पोषण एग्डन हीथ पर ही हुआ था और वे इसके मूल निवासी हैं और वो हीथ से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। इसके प्रभावों के माध्यम से और उसके माध्यम से ही वो व्याप्त हैं। वो पहाड़ियों को अनुकूल और मैत्रीपूर्ण भी पाते हैं और उनकी आत्मा और उनके खून में भी वहाँ की पहाड़ियाँ और वहाँ का वातावरण व्याप्त है। उनके खेलने की चीज़ें हैं एग्डन की वनस्पति और वहाँ का वातावरण। ओके और वो एग्डन हीथ में रहकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ओके As Clyde Gilbride, the native of Egdon, was a promising lad, he was sent to Paris so that he may prosper and rise in life. There he became the manager of a big diamond business. He was doing well there, but still he did not feel happy and satisfied. He felt bored and tired in the artificial and unnatural life of the city of Paris. He did not feel at home there, and he felt that in Paris he was pandering to the meanest vanities of the libertine and shameless women. The call of Agdon was too strong for him and he returned. Okay. The return of the Clyde Eobright to his native Agdon causes much sorrow, suffering in the life of at least 5 people. Clyde himself, Eustacia, Wildave, Mr. Eobright, and Thompson. Clyde was disgusted with the life at Paris and he intended to devote the rest of his life to the education of health folk. He intended to stay forever in his birthplace, to start a sort of school for the education of the Justice. This is a novel and indeed but it too idealistic and is bound to result in frustration and disappointment. The title of the novel is The Return of the Native. It is highly suggested for its point out how Clyde leaves Paris कि किस तरीके से जो क्लाइड यूब्राइट होते हैं वो किस तरीके से पेरिस को छोड़ देते हैं एंड लिव्स इन हिज स्मॉल विलेज और अपने छोटे से गांव में रहते हैं। क्लाइड इज डायमंड मर्चेंट पेरिस। क्लाइड जो हैं वो एक डायमंड के व्यापारी थे कहाँ पर पेरिस में। बट हिज एम्बिशंस इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद वेल्थ, लेकिन इस धन से वो पूरी तरह से उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो संतुष्ट नहीं हो पाई। ही कम्स होम, वो घर वापस आ गए। दस द नॉवेल इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, और ये नॉवेल उनके नाम के साथ ही जुड़ी हुई है। ओके, क्लाइम्स रिटर्न फ्रॉम द पेरिस। क्लाइम इज़ नॉट ओनली द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवेल बट ही इज़ आल्सो नेटिव एट हार्ट and wishes to do something for the improvement of his small village where his mother cousin still live. Mrs. Eobright his mother, Mrs. Eobright जो थी उनकी माँ थी। थॉमसन यूब्राइट उनके कज़िन थे। ओके, एंड ही इज़ द सन ऑफ मिसेस यूब्राइट के वो बेटे थे एंड ही इज़ द कज़िन ऑफ थॉमसन यूब्राइट, और थॉमसन यूब्राइट के वो कज़िन हैं। एंड इट इज़ अ विलेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, और ये जो गांव है वो किसका है? कृषि क्षेत्र है, मतलब वनस्पति वगैरह यहाँ पर है। एंड द टाइटल बिकम्स हाईली सिग्निफिकेंट, और ये जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा हाईली सिग्निफिकेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। व्हेन क्लाइम कट्स फेगट्स, जब क्लाइम जो है फेगट्स को कट्स करते हैं। दस ही मेक हिमसेल्फ बिजी इन नेटिव ऑक्यूपेशन। ओके,
A good title must be appropriate and significant, just as signboard indicates. The contents of a shop. A good title should indicate the substance or the basic theme of a novel is the story of the tragic consequences of the return of the Clym Gilbride, who is native of the Adcon Heath. Clym is a man of noble purpose. He plans to run a school. वो एक बहुत ही श्रेष्ठ उद्देश्य के व्यक्ति थे. कौन? क्लाइम यूब्राइड. और उन्होंने स्कूल छोड़ने का एक प्लान बनाया. फॉर दैट ही स्टडी फर्स्ट टू प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड हिज मदर फेल्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ लिविंग एट द स्मॉल टाउन इन प्लेस ऑफ पेरिस. ही वॉन्ट्स टू डू सम नॉवेल थिंग इन लाइफ. वो अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ करना चाहते थे. एज ए स्कूल मास्टर ही विल टीच द पुअर एंड इग्नोरेंट. और एक स्कूल मास्टर के रूप में वो टीच करेंगे किसे? जो गरीब लोग होते हैं, जो इग्नोरेंट होते हैं. एंड द मदर फियर्स दैट ही विल बी ए पुअर मैन्स स्कूल मास्टर. क्लाइम लव्स हिज नेटिव पीपल. जो क्लाइम हैं वो अपने गांव के लोगों को बहुत प्रेम करते थे. एंड विशेस टू डू समथिंग नॉवेल फॉर देम. और ये इच्छा करते थे कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे. बट द कोर्स ऑफ लव नेवर रन स्मूथ एंड हिज टू मच रीडिंग becomes a course. One morning Clym feels pain in his eyes. एक दिन एक सुबह के समय क्लाइम की आंख में बहुत दर्द हुआ. एंड यूस्टेशिया fears he may blind. यूस्टेशिया को बहुत डर था कहीं वो अंधे ना हो जाए. एंड आफ्टर ट्रीटमेंट his eyes have sight enough for walking about. और बाद में इलाज करने के बाद उनकी आंखें वापस आ गई. ओके. Dignity of labor. Clym was fair in dignity of labor, and when Clym feels that he can walk in the village, he walks outside and comes to meet Humphrey and tells him that a low class work may still be done with weak eyesight. Okay. Thus the novel narrates the story of the tragic consequences of the return of the Clym to Acton, his native place. Hence the title is appropriate. Okay, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Thank you for watching.